Start recording. Okay. Share your screen. Okay. So is the screen visible now? यस लोडिंग हो रहा है. हाँ हो गया. Okay. Okay. So generally yesterday we were seeing these three different types of lighting, different categories of lighting. Okay. And after this lighting, we saw the different aerodrome signals. We saw different aviation light signals, which is generally used when we say it is a condition called as a deaf pilot condition or RCF condition. There is a condition called as a RCF, radio communication failure. So when radio communication failure occurs, so it is assumed that the pilot is not able to hear, but ATC is continuously transmitting or he's sending the signal. So in this condition, ATC generally uses these lights, three different colors of light. Okay, it has three different colors of light. Generally, it is red, white, and green. Okay. Yesterday we drew one chart. Where is the chart? I could not find in this. Okay, here. Yeah, we drew one chart. These were the conditions when aircraft is in the flight, aircraft is on the ground, and any person or vehicle on the ground or runway, wherever on the aerodrome. Okay, so these were the conditions: flashing white, steady green, flashing green, steady red, flashing red, and alternating red and green. This is generally on the runway, and blinking runway aviation lights. Okay, so under this condition, we saw what happens generally. Okay, under this condition, we generally saw when it is much other dark opacity. Okay, when it is flashing white. So what happens when any? This is only available in ECAO document, right? But most of the cases, this is not applicable. This condition is not applicable for the aircraft in flight. Okay, but in some condition, it is applicable. So what does it state? It states when it is flashing white and aircraft is in the flight, the aircraft have to land and proceed to apron directly. Okay, after landing, you have to directly proceed to the apron. Similarly, when the aircraft is on the ground, the aircraft has to return to the starting point. Either it is the threshold or either it is the apron. Means you have started your aircraft, but you are on the midway, so you have to directly return to the starting point again. When the aircraft is any vehicle, so you have to return to the starting point again. Means this white light, flashing white states you have to return to the starting point. Either you took off, either you are in the midway of the taxi, either on the any point, but you have to return to the starting point. Second is the steady green. Steady green is nothing but a affirmative signal. It is a clearance. If you are on the approach, that means ATC is saying you are clear to land. If you are on the bay, you are clear to taxi. Similarly, wherever you are standing, if you are requesting ATC, so ATC gives the green signal that you are clear to cross or clear to do anything. Okay. Similarly, if it is a flashing green, that means you are clear to approach. Okay, and return to land. Means these two conditions are similar. If you see, look, this condition and this condition are similar. Okay, but this is valid, this is optional, this one is optional. Okay, ये मैंने कल बताया था. This is valid only in certain conditions. Most of the conditions this becomes NA, not applicable. ठीक है, जैसे इधर पे NA है, this also becomes not applicable in most of the cases. So next is clear to taxi if it is on the ground, and this is not applicable for the ground vehicle. Flashing green is not applicable here. Steady red, it is a symbol of danger, right? So if it is clear to the aircraft on approach, so that means it is staying continue circling, means you are not clear to land. Okay, and if you are on the ground, that means it is a clear indication of stop for both the person and the aircraft. Okay, flashing red means the airport is unsafe. Here it was totally like in this condition, it was totally you are on hold.
on approach path. But here in this condition, you are not allowed to land only. Okay, this condition states you are on hold, standby condition. Okay, next condition is the alternating red and green. If the ATC is using two colors of light for indication, so red and green indicates extreme caution. Right, there is certain conditions on all the three states, on the ground and airborne. If you are aircraft, if you are a person, you have to take care of, means this you need to go with the extreme caution anywhere, on the runway, on the approach path, on the takeoff, wherever you are. Okay. Similarly, third condition is the blinking runway and the runway aviation lights. Means runway aviation lights here denotes the runway center line. Runway center line and the runway edge lights, runway end lights, all light will continuously start blinking. Okay, means whole runway light will start blinking. That means you have to vacate this runway immediately. ATC wants you to vacate the runway because there can be a condition that any aircraft is on approach path. So they want you to vacate the runway immediately. These were the few conditions which we saw yesterday. Today we are going to continue further. Okay, so today's lecture, we'll take the new slide. I'll take the new slide. Okay, so this is the new slide. I made it dotted. No, right, dotted. Okay, let's take this. Okay, so today we are going to see is the types of runway conditions, different types of runway conditions. Okay, it's small. Runway conditions. Heading डालो. Runway conditions. Different types of runway conditions. Different types of runway conditions. So there are generally 5 different runway conditions. Okay, लिखते जाना. There are generally 5 different types of runway conditions. We'll take the pen. Pen stroke, intensity, color change. Okay, there are 5 different types of runway conditions. Number 1 is the dry runway. Number 1 is the dry runway. So when the runway is called as dry, तब हम किसी runway को बोलेंगे कि ये runway particularly dry है. Okay. Basically, these are the conditions where the runway surfaces are dry, wet, contaminated, right? So सबसे पहला condition जो है हमारे पास dry runway. When the runway is called as dry. So लिख लो इसके अंदर. Write down in this point. Dry runway is optimal condition. It is an optimal condition. Also called as normal condition. ये हमेशा generally रहना चाहिए. We expect runway to be optimal, and runway is not affected by water. Means there is no water on the runway. Second, slush, snow, or ice. Right? When it is not affected by these conditions, then it is generally called as a dry runway. Second one is the damp runway. Damp, D-A-M-P, damp. Let me make it separate. Damp runway. Second condition is the damp runway. Now this is the condition where runway shows the change of color. Okay, runway shows the change of color due to the moisture. इसका क्या condition है? It shows the change of color due to moisture present on the runway. राइट, थोड़ा सा कहीं पे डार्क हो जा रहा है, कहीं पे मतलब जैसे पानी गिर जाता है, कहीं ओस गिर जाता है, यू गाइस कैन सी रनवे थोड़ा सा वेट हो गया. So it is showing the change of color, but it is not totally wet, but it is only showing the change of color. Okay, if there is a sufficient moisture to produce a surface film or surface appears reflective, मतलब यहाँ पे condition है, लिखते जाना.
पूरा लिखो, if there is a sufficient moisture, इतना मॉइस्चर है कि रनवे को क्या कर दे रहा है, गीला कर दे रहा है. Sufficient moisture to produce a surface film or the surface appears reflective. Okay, this is the condition. Means there is a slight amount of moisture जिसके वजह से there is a discoloration on the runway, right? So most important point is it shows the change of color. Third condition of the runway is the wet runway. Wet runway. When the runway will be called as wet. So when there is a presence of moisture or water. So in this condition, there is a presence of water. Presence of water on the runway. The surface is soaked but no standing water. ठीक है, कोई standing water नहीं है, but it is soaked. लिख लो. Surface is soaked, but no standing water. ठीक है, सरफेस गीला है बट कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं हुआ है. दिस कंडीशन इज जनरली कॉल्ड एज ए वेट रनवे. ओके, नेक्स्ट लिखो वाटर पैचेस. नेक्स्ट कंडीशन इज दी water patches. Next condition is the water patches. So in water patches what happen? The patches of standing water, right? पहले वाले में क्या था कि कोई पैचेस नहीं है, स्टैंडिंग वाटर नहीं है, बट रनवे गीला है. In this condition what happens? There is a small patches of water, right? लिख लो, patches of standing water. Standing water. Patches of standing water are visible. Patches of standing water are visible. Okay, this is the condition. So water patches, what do you understand by water patches? Water patches होता क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं. So it is nothing but a water patches covering more than, लिख लो, इसका भी लिख लो, लिख ही लो. Water patches होता क्या है? So standing water patches, heading डालो, water patches means standing water covering more than 25%, more than 25%, but not exceeding 50% of the runway surface area, whether is an isolated area or not. ठीक है, मतलब वो कोई भी एक एरिया ऐसा हो सकता है जो हमारे यूज में है नहीं है, राइट? फॉर एग्जांपल इट कैन बी अ स्टॉप वे आल्सो, और इट कैन बी अ क्लियर वे आल्सो, राइट? दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रनवे. ओके, सो ये कोई भी एरिया पे अगर जो हमें 25% ऑफ द रनवे ऐसा लग रहा है कि वहां पे पानी इकट्ठा हो गया, देन वी विल कॉल इट एज दिस कंडीशन इज जनरली कॉल्ड एज ए वाटर पैचेस ऑन द रनवे. ठीक है, फिफ्थ जो कंडीशन है फ्लडेड. व्हेन द रनवे विल बी कॉल्ड एज फ्लडेड, फ्लडेड रनवे. ठीक है, व्हेन वी विल कॉल दिस कंडीशन, सो लिखते जाओ, एक्सटेंसिव स्टैंडिंग वाटर इज विजिबल इन दिस कंडीशन.
extensive standing water is visible. This is the condition. Okay, when we will call this runway as a flooded. So अब इसमें भी परसेंटेज देख लो. हमने ऊपर वाले में क्या देखा था कि 25% होना चाहिए बट 50% से कम होना चाहिए. बट इसके अंदर क्या होगा? इट इज मोर देन 50%. लिखो. Flooded means standing water covering more than 50% of the runway surface area. Within the required length and width being used. ठीक है. यूजेबल रनवे पे मोर देन 50% ऑफ द एरिया अगर जो कवर्ड है वाटर से, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए फ्लडेड. एक और पॉइंट इसमें लिखो. रनवे इज कवर्ड बाय वाटर मोर देन 3 mm डीप. कितना डीप होना चाहिए? मोर देन 3 mm. ठीक है. मतलब जो रनवे वो वाटर का जो हाइट है ऐसा बोल सकते हैं, मतलब इतनी ऊंचाई, इतना थिक होना चाहिए वाटर. सो 3 mm डीप होना चाहिए जनरली. इतना मोटा पानी का लेयर जमा होना चाहिए वहां पे, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए फ्लडेड. ठीक है. नेक्स्ट जो कंडीशन हमारे पास है कंटामिनेटेड. दिस इज द मोस्ट सीवियर कंडीशन. कंटामिनेटेड रनवे मतलब ये रनवे पूरी तरीके से अनयूजेबल हो गया, कंटामिनेटेड हो गया. मींस यू कैन नॉट यूज दिस रनवे फॉर लैंडिंग टेक ऑफ. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, रनवे इज कंसिडर्ड कंटामिनेटेड when more than 25% of the runway surface area is covered by water or slush. स्लैश कुड बी एनीथिंग, एनी थिक मटेरियल, कोई भी ऐसा ऑयल या फिर कुछ भी हो सकता है. ठीक है. ऑयल ग्रीस जो भी रनवे पे गिर गया है. ठीक है. मोर देन 3 mm deep or any depth of compensated or any depth of compacted snow or ice. ठीक है. दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कंटामिनेटेड रनवे. कब बोला जाएगा? मतलब यहाँ से वाटर पैचेस से लेके फ्लडेड, दिस आल्सो बी कॉल्ड एज ए कंटामिनेटेड रनवे. ओके. मोर देन 25% होना चाहिए 3 mm डीप. अगर जो इतना लेंथ है, कोई भी मतलब हाइट बोल सकते हैं वाटर का, या फिर कोई भी स्लश कुछ भी हो सकता है. सो देन द रनवे विल बी कॉल्ड एज ए कंटामिनेटेड रनवे. अब इसका एक चार्ट बना लो. जनरली हमारे पार्ट 2 में ये क्वेश्चन आता है. ब्रेकिंग एक्शन, रनवे कौन से कंडीशन में है तो उस पर कितना ब्रेक लगता है. राइट. ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. जनरली हमारा रनवे के ऊपर ब्रेकिंग एक्शन बहुत तगड़ा होना चाहिए. राइट. तो इसी के नीचे एक हम चार्ट बनाएंगे इस तरीके का कि कौन से कंडीशन में रनवे पे कितना ब्रेक लगता है और कौन सा ब्रेकिंग एक्शन हमारे लिए सेफ होता है रनवे पे. ठीक है. कौन सा ब्रेकिंग एक्शन हमारे रनवे पे सेफ होता है. तो इस तरीके का हम एक चार्ट बनाएंगे.
और चार्ट में हम बनाएंगे 3 कॉलम, विल मेक इट 3 कॉलम्स, 1 2 एंड 3 कॉलम का चार्ट बनाएंगे और एक में लिखेंगे RYCC, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे RWYCC, दिस स्टैंड्स फॉर रनवे कंडीशन कोड। ओके, रनवे कंडीशन कोड फुल फॉर्म लिख लो, RYCC इज नथिंग बट अ रनवे कंडीशन कोड। ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे कंडीशन डिस्क्रिप्शन, कंडीशन डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रेकिंग एक्शन। ठीक है, ब्रेकिंग एक्शन कौन से कंडीशन पे कितना ब्रेकिंग एक्शन होगा, और टिपिकल सरफेस एरिया यहाँ पे डालेंगे, टिपिकल सरफेस कंडीशन कौन सा कंडीशन रहेगा उस कंडीशन में। ठीक है, व्हाट विल बी द रनवे कंडीशन, ये तीनों में हम देखेंगे। सो सबसे पहला हमारे पास है 6, RYCC कोड 6। ठीक है, RYCC कोड 6। सो इसमें ब्रेकिंग एक्शन क्या होगा, मीन्स रनवे ड्राई, और यहाँ पे ब्रेकिंग एक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ब्रेकिंग एक्शन इज मानते हैं, वेरी गुड मानते हैं। ठीक है, और रनवे का कंडीशन क्या रहेगा, ड्राई रनवे। ठीक है, नेक्स्ट में जो आएगा 5, सो 5 में ब्रेकिंग एक्शन विल बी गुड। ओके, सो ब्रेकिंग एक्शन विल बी गुड। और यहाँ पे रनवे का कंडीशन क्या हो सकता है जनरली, वेट रनवे, राइट। इसमें लिखते जाना, लंबा है थोड़ा सा, पैराग्राफ इज लिटिल लॉन्गर। वेट रनवे, राइट, यहाँ पे हो सकता है वेट, फ्रॉस्ट और स्लश, राइट। सो वेट कितना, 3 mm ऑफ वाटर, वेट में कितना रहेगा, इट इज 3 mm ऑफ वाटर, अप टू 3 mm ऑफ वाटर। फ्रॉस्ट में क्या रहेगा, और स्लश में क्या रहेगा, ये भी मतलब दिस बोथ शुड बी मोर देन 3 mm। ठीक है, और या फिर ड्राई स्नो और वेट स्नो, राइट। ये गुड कंडीशन में हो सकता है, व्हेन द रनवे इज इन गुड कंडीशन, बट वहां पे ये चीजें हो सकती हैं रनवे के ऊपर। और ब्रेकिंग डीएसेलरेशन इज नॉर्मल फॉर द व्हील्स, राइट। इस कंडीशन में क्या होगा कि ब्रेकिंग बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, अप्लाइड एंड डायरेक्शनल कंट्रोल इज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है। ओके, ऑल थिंग्स आर गुड, इस कंडीशन में हम अच्छे से लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। दिस कंडीशन इज वेरी गुड फॉर लैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कोड है दैट इज नंबर 4, इसमें क्या होता है, गुड टू मीडियम। ठीक है, अब ये काम कब आएगा, देखो जनरली हम कोई भी एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे होते हैं ना, तो ये जो पायलट है, दे आस्क द एटीसी कि रनवे का कंडीशन कैसा है, व्हाट इज द ब्रेकिंग एक्शन, टेल मी द ब्रेकिंग एक्शन, ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब वो लोग क्या बोलेंगे, सिंपल ऐसे बोलेंगे, रिक्वेस्ट ब्रेकिंग एक्शन। तो एटीसी हमें बताएगा कि हमारे रनवे पे जो ब्रेकिंग एक्शन है वो 4 है, 5 है, दे विल जनरली टेल द नंबर। ओके, या फिर ये बोलेंगे, दे विल टेल यू द गुड टू मीडियम गुड, राइट, दे विल टेल यू दिस। सो इट्स ऑन द pilot to decide whether they can land on this type of runway or not। ये उनका डिसीजन होगा टोटली, एटीसी का कोई डिसीजन नहीं होगा। एटीसी अपने रनवे का कंडीशन खाली तुम्हें बताएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम्हारी कैपेबिलिटी होगी कि तुम पर्टिकुलरली उस एयरक्राफ्ट पे, उस रनवे पे लैंड कर सकते हो कि नहीं, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो पता चला बारिश में भी लैंड करा देते हैं कुछ लोग। ठीक है, सो यहाँ पे जनरली क्या है, नंबर 4 गुड टू मीडियम, और डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कॉम्पैक्टेड स्नो, राइट। रनवे पे थोड़ा थोड़ा स्नो है, और जनरली टेम्परेचर कितना हो सकता है, एट -15 डिग्री सेल्सियस और कोल्डर। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है रनवे पे। नेक्स्ट है
3 में आएगा मीडियम, और ब्रेकिंग एक्शन भी हो जाएगा हमारा, ब्रेकिंग एक्शन मीडियम हो गया। यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे रनवे हैज बिकम स्लिपरी, wet runway. This is the condition of the runway. Okay. This is the condition of the runway. और इसके आगे और लिख लो जो आइस का कंडीशन है, यहाँ पे भी आइस जमेगा, ड्राई और वेट, स्नो ओवर कॉम्पैक्टेड स्नो, ठीक है। मतलब ये जो स्नो था हमारा, इसके ऊपर एक पतला सा और एक लेयर ऑफ द स्नो है, जिसकी वजह से हमारा जो रनवे है क्या हो गया, स्लिपरी बन गया है, राइट। डबल लेयर ऑफ द स्नो, और दैट इज जनरली वार्मर देन 15 डिग्री। हमने जो यहाँ पे दिखा था ये -15 डिग्री से और ज्यादा ठंडा हो सकता है, पर ये 15 डिग्री से थोड़ा सा वार्मर रहेगा, ठीक है। और ग्रेटर देन, ये जो कंटेमिनेशन है इट विल बी ग्रेटर देन 3 mm डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ ड्राई स्नो और वेट स्नो, राइट। दिस इज द कंडीशन। मतलब रनवे के ऊपर बर्फ बहुत जम गया है, बहुत ज्यादा बर्फ है, देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो ऑन द रनवे, डबल लेयर ऑफ स्नो, एक कॉम्पैक्टेड स्नो का है और एक दूसरा स्लिपरी, एक ड्राई और वेट स्नो उसके ऊपर जम गया है, पतला सा लेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है ब्रेकिंग एक्शन 2, राइट, ब्रेकिंग एक्शन 2। तो इसमें है मीडियम टू पुअर, ब्रेकिंग एक्शन कितना हो जाएगा, मीडियम टू पुअर। और यहाँ पे रनवे का कंडीशन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 3 mm डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग वाटर, greater than 3 mm depth of standing water और slush, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या होगा, रनवे का ब्रेकिंग एक्शन विल बी वेरी पुअर, और हमारे पूरे रनवे के ऊपर आइस जम चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में विल राइट डाउन एज आइस फॉर्मेशन ऑन द रनवे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्नो एंड आइस, याद रखना, स्नो एंड आइस में बहुत डिफरेंस है। आइस इज वेरी रिजिड, स्नो एक तरीके से पाउडर के फॉर्म में होता है, इट इज मूवेबल, बट आइस क्या होता है कि रनवे के ऊपर अब चिपक चुका है, ठीक है। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द रनवे, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन हमारे पास है 0, और इसमें क्या होगा, जनरली नील और पुअर, मतलब पुअर से भी बेकार, ब्रेकिंग एक्शन 0 हो जाता है, NIL नील और पुअर, ठीक है। सो इसमें कंडीशन क्या रहेगा, वेट आइस ऑन द रनवे और वाटर ओवर, मतलब नीचे आइस जमा हुआ है उसके ऊपर पानी भी, मतलब देयर इज ए वाटर आल्सो ओवर द आइस, ठीक है। कॉम्पैक्टेड स्नो, मतलब इसके ऊपर जस्ट इमेजिन करो, इसके ऊपर ब्रेक तो बिल्कुल नहीं लगेगा टायर का। और ड्राई आइस, ड्राई आइस, ड्राई स्नो के ऊपर अलग से एक पतला सा पानी का लेयर है, जिसकी वजह से द ब्रेकिंग एक्शन फॉर द रनवे हैज बिकम टोटली 0, ठीक है। So these were the 6 conditions, 7 conditions of the braking actions. सेफ कौन सा है लैंडिंग के लिए, 6, 5, 4, ठीक है। इसमें हम लैंडिंग की कोशिश कर सकते हैं। ये इन सब में हम जनरली क्या करते हैं, अगर एडीसी बोलता है कि ब्रेकिंग रनवे कंडीशन या फिर ब्रेकिंग एक्शन 2, ब्रेकिंग एक्शन 3, तो इट्स ऑन यू कि तुम्हें लैंड करना है कि नहीं। आप सीधे बोल देंगे कि हम लैंड नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स अल्टरनेट। यहाँ पे तुम्हारे पास मतलब हम क्वेश्चन में जब देखेंगे, विल सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सो वी विल क्या, गो टुवर्ड्स अल्टरनेट एरोड्रोम।
deviating towards alternate. ठीक है, ये हम सीधा हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अल्टरनेट की तरफ चले जाएंगे. विल नॉट यूज दिस रनवे. ठीक है, हर चार्ट में जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके अंदर 2 एरोड्रोम दिया रहेगा, डेस्टिनेशन एरोड्रोम. जनरली डिपार्चर दिया रहता है, हमारा डिपार्चर क्या है और डेस्टिनेशन क्या है. और डेस्टिनेशन के अलावा एक और चीज दिया रहता है, अल्टरनेट. ठीक है, अल्टरनेट एरोड्रोम. तो डिपार्चर तो एक ही रहेगा बट डेस्टिनेशन एक रहेगा और अल्टरनेट हमेशा मेंशन रहता है. ठीक है, अगर डेस्टिनेशन नहीं फंक्शन कर रहा है तो वी विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स अल्टरनेट. ठीक है, जरूरी नहीं अल्टरनेट पास में ही हो. अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स है तो देखो अल्टरनेट कभी कभी फॉर एग्जांपल जो दिल्ली बेस्ड, दिल्ली का गलत स्पेलिंग लिख दिया जा रहा है, जो दिल्ली बेस्ड फ्लाइट है उनके लिए कभी कभी अल्टरनेट कोलकाता हो जाता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि पास पास में ही हो बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन पास पास में ही रहता है. ठीक है, बट जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स रहते हैं उनके लिए कभी कभी ये डिस्टेंस ज्यादा भी हो जाता है. ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी ऑपरेटर, डिपेंड्स ऑन दी एयरलाइन कि वो डेस्टिनेशन और अल्टरनेट क्या सिलेक्ट करते हैं. वो लोग अल्टरनेट सब चीजें देख के सिलेक्ट करते हैं कि हो सकता है कि वहां पे फायर फाइटिंग सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं, एरोड्रोम सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं, डिपेंड्स. ठीक है, ये सारी चीजें देख के वो लोग अल्टरनेट सिलेक्ट करते हैं. ओके, so these were the few conditions of the runway. ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज द एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट, ARP. ARP, aerodrome reference point. We'll write down the definition. Aerodrome reference point, ARP. अभी ARP क्या है, सो इसके पॉइंट्स लिखते जाओ. जनरली इट इज अ पॉइंट ऑन दी, मतलब ये हमारा एक एरोड्रोम है फॉर एग्जांपल, उस एरोड्रोम पे ज्योमेट्रिक सेंटर होता है जहां से हम सारा रेफरेंस लेंगे, सारा मेजरमेंट लेंगे हमारे एयरपोर्ट का. ठीक है, यहाँ पे कुछ बनाना है तो हम इस पॉइंट से मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पे कुछ बनाना है इस पॉइंट से मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पे कुछ हमें डेवलप करना है वी विल टेक द मेजरमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे कुछ डेवलप करना है हम यहाँ से मेजरमेंट. तो एक तरीके से उस एरोड्रोम का सेंटर पॉइंट बोल सकते हो. ठीक है, पूरे एरोड्रोम का सेंटर पॉइंट ऐसे बोल सकते हो कि हम कोई भी रेफरेंस लेंगे उसी रेफरेंस पॉइंट से लेंगे, कोई भी मेजरमेंट लेंगे उसी रेफरेंस पॉइंट से लेंगे, एरोड्रोम का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताना है इसी रेफरेंस पॉइंट से बताएंगे. ठीक है, कोई भी डिस्टेंस लेना है विल टेक फ्रॉम दिस एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, तो ये हमारा एक इस तरीके का पॉइंट कैसा दिखता है. तो इसका सिंबल जनरली इस तरीके का होता है, एक सर्कुलर ऐसे होगा, राइट, और इस पे लिखा होगा एरोड्रोम, ऐसे इस तरीके एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट, और ऐसा एक एरो बना होगा. ठीक है, इस तरीके का एक एरो बना होगा और ये स्टेनलेस स्टील का रहता है. जनरली जहां पे भी एरोड्रोम पॉइंट रहेगा एक स्टेनलेस स्टील का प्लेट लगा रहेगा वहां पे इस तरीके का. ठीक है, या फिर इस तरीके का एक होर्डिंग भी लगा रह सकता है जिसके ऊपर लिखा रहेगा एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट एंड सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी लिखना है इसके ऊपर. ठीक है, उस जगह पे जहां पे भी ये है, दीज आर द टू कंडीशंस. ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में पॉइंट्स लिखो. लेट्स राइट डाउन द पॉइंट. पहले डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट. लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन. आर यू देयर सलमान? Salman, are you there? Are you listening? Okay. So, aerodrome reference point is nothing but a लिखो. ARP इस तरीके का definition डाल लो. कुछ points बताऊंगा, point वाइज लिख लो. So, it is a designated area और designated ऐसा लिख लो, designated area और geographical location of an aerodrome designated area or geographical location of an aerodrome typically located near the
typically located near the geometric center of the runways. कहाँ पे लोकेटेड रहता है? टिपिकली लोकेटेड नियर द जियोमेट्रिक सेंटर्स ऑफ द रनवे. टिपिकली ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है कि वहीं पे रहेगा, ठीक है. टिपिकली, जनरली ऐसा बोलते हैं. टिपिकली मीन्स जनरली. इट सर्व्स एज ए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, इट सर्व्स एज ए crucial reference for navigation. ठीक है, नेविगेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है. नेविगेशन में हम इसी पॉइंट को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें अगर जो बोलना है कि ये कहाँ लोकेटेड है एरोड्रोम, तो हम इधर से ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कैलकुलेशन करेंगे. सो नेविगेशन एंड मैपिंग एंड प्लानिंग. ओके, दीस आर दी 3 कंडीशंस जो हम इसे करेंगे. उसी में कंटिन्यू करो. विथ इट्स precise coordinates listed in airport official informations. ठीक है, एयरपोर्ट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, इसके पूरे कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे. इट इज ऑल्सो, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम, इसी का एक नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे. इट इज ऑल्सो यूज टू measure magnetic bearing. Magnetic bearings and distances of obstruction within certain radius. Okay, within a certain radius. ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया कि एक सेंटर पॉइंट है, यहीं से हम पूरे एरोड्रोम का मेजरमेंट लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर जो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है इस रनवे पे, तो हम यहाँ से ये पर्टिकुलर डिग्री निकाल लेंगे. दिस इज बिटवीन दी, फॉर एग्जांपल ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हमारा 270 डिग्री हो गया. तो उसके बीच में जो भी है, फॉर एग्जांपल दिस इज 290 डिग्रीज. सो हम बोल देंगे एट 290 डिग्रीज इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल दिस इज मान लो 1000 फीट. ठीक है, 1000 फीट पे ये ऑब्स्ट्रक्शन है. तो हम हमारा जो भी मेंटेनेंस टीम लेंगे उनको कैसे गाइड करेंगे? 290 डिग्रीज 1000 फीट. तो इधर से हम सीधा यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, जहां पे भी जाना है. इसे डिस्टेंस रेफरेंस निकालना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, कोई भी एरोड्रोम पे. अब इसे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. We'll write down next point. Why ARP is important? Why this reference point is important? Next point हम लिखेंगे. So this is the single reference point. एयरपोर्ट पे और कोई ऐसा दूसरा रेफरेंस पॉइंट नहीं है जो ऑफिशियल है, राइट. सो इट इज अ सिंगल ऑफिशियल रेफरेंस फॉर एयरपोर्ट लोकेशन. ठीक है, पूरे एयरपोर्ट पे यही एक पॉइंट होता है जिससे हम पूरे एयरपोर्ट को लोकेट कर रहे होते हैं. ठीक है, और इट इज जनरली ऑल्सो यूज्ड फॉर नेविगेशन एंड एयरपोर्ट प्लानिंग, जो कि मैंने पहले ही लिखा दिया होगा. नेविगेशन एंड एयरपोर्ट प्लानिंग मतलब एयरपोर्ट पे कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो हम इसी के रेफरेंस से करते हैं कि उससे कितना दूर होगा, कितना पास होगा, जो भी है. ठीक है, अब ARP ये जो है एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट कौन से मैनुअल में दिया रहता है, राइट.
तो सबसे पहला जो मैनुअल है AIP, राइट, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन। इसके बारे में मैं डिटेल में तुम लोग लिखाऊंगा व्हाट इज AIP, right? The coordinates of ARP are mandatory part of the official data, right? So ARP होता है, this is the official data published by the aerodrome, aeronautical information publication। इसका जो फुल फॉर्म होता है AIP का, aeronautical information publication। और ये जनरली हमारे फ्लाइट मैनुअल का भी पार्ट होता है, जो हमारे एयर पायलट्स वो कैरी करते हैं, तो उसके अंदर भी उसका मेंशन रहेगा, राइट? ARP का मेंशन रहेगा। दूसरा ATS सर्विसेज में, राइट, ATC हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसमें भी दिस विल एक्ट एज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस। डिस्टेंस मेजरमेंट, these are the most important functions, distance measurement और navigation services, air navigation। These were the 4 different functions, ठीक है, ऑफ। अभी कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है जनरली? सो कोई ऐसा कोई तीर नहीं माने इसके अंदर। जनरली क्या करते हैं, जितने भी यूजेबल रनवे हैं, राइट, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ऑल यूजेबल रनवे, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो इट इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ऑल यूजेबल रनवे, जितने भी यूजेबल रनवे है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर रहेगा, ठीक है, समझ गए? दिस इज द ओवरऑल एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट। सलमान, आई थिंक आज के इतना ही करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है तुम्हें? नहीं सर, बस वो आपने आपने बताया ना वो ANP वाला। हाँ, AIP में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिकॉज दिस इज अ टोटल डॉक्यूमेंट जो हमें पढ़ना है पार्ट 1 के लिए, ठीक है? तो मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ओके ओके सर, ओके, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।